So we need to just have a little practice over the reading techniques. Chalo, what to read this? Let me know. 189.0. Yes. If it is altitude and given as how to read this? 19,400 feet. 19,000. 9,000. Okay, 19,400 feet. And if it is written as hmm, give me read out others. Victor Tango Alpha Juliet Delta Sierra Romeo Sierra Sierra Romeo Juliet. You all can give read back of this. Vector Tango, Vector Tango, Go ahead, go ahead, go ahead. Juliet Wolf. Another Vector one. Tango, Echo Sierra. ठीक है. Echo echo. ठीक है. Echo. Done. And if it is written as Runway Runway 2 Niner. runway visual range 1,200 meters. ठीक है. विजिबिलिटी और रनवे विजुअल रेंज को हम मीटर्स में मेजर करते हैं. वेरी गुड. एंड रिगार्डिंग द टाइम, ठीक है, रिगार्डिंग द टाइम, व्हाट इज द करेंट टाइम? Read it out. 2121 minutes. 1609 and half. And the time is 2121. Chalo, we'll move to the next topic. ठीक है. This was the practice of reading techniques. Till the time you can also let me know. 21 minutes. You can simply say the time is 21 minutes. Yes, definitely we can say. Right? ठीक है सर. Now, we'll have a look on the next topic, and the next topic is the same as we had left yesterday. Runway and its part. Sorry, airport and its part. In that we had little overview over runway only. Today also I'll just brief one by one. Okay? So that you can also have some revision on an airport. Okay? The basic difference between aerodrome and airport is aerodrome shall have the piece of land over and water or land, ठीक है, the piece of land or water over which, if the pathway for takeoff and landing run and area for the parking and the corridor connecting apron and parking can be made, that will be known as aerodrome. तो अगर बेसिक तीन चीज अवेलेबल है किसी भी एयरफील्ड पे, वो एरोड्रोम कहलाएगा. ठीक है. Other than this, if the service of porting passengers, mails, cargo for commercial operation, if made available to aerodrome, that becomes airport. Airports may also needs additional necessary facilities, ठीक है, which is to provide services to its user. That's all.
एडिशनल सर्विसेज उसके यूजर के लिए, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के रिगार्डिंग कोई बड़ा रोल नहीं है। नाउ रनवे, ठीक है, द डिफाइंड पाथ ओवर एन एयरपोर्ट, डिफाइंड पाथ बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि यहीं पे लैंड करो, सिर्फ यहीं पे लैंड या टेक ऑफ कर सकते हो। तो द डिफाइंड पाथ ओवर एन एयरफील्ड अवेलेबल फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग रन इज नोन एज रनवे। उसके बाद आया रनवे थ्रेशहोल्ड, द बिगिनिंग ऑफ ए रनवे आफ्टर विच टेक ऑफ एंड लैंडिंग एरिया इज अवेलेबल, रनवे थ्रेशहोल्ड। रनवे डेजिग्नेटर, ठीक है, द डेजिग्नेशन ऑफ रनवे, द डेजिग्नेशन ऑफ रनवे which represents the angle of runway center line, which represents the angle of runway center line along with the earth magnetic north, runway center line का अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल से रनवे डेजिग्नेटर रिप्रेजेंट होगा। सो इफ एंगल इज मेड 270 डिग्री, it will be known as runway 27. Am I clear? Runway designator may be present, ठीक है, may be present over both end of the runway, दोनों एंड पे हो सकते हैं। इनको कहा जाता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रनवे। As we have seen yesterday कि on an earth magnetic field if a straight line is there, एक साइड से अगर वो 270 डिग्री एंगल बना रहा है तो दूसरे साइड पे वो 90 डिग्री भी बना रहा है। सो द सेम लेंथ ऑफ लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ टू एंगल, एक 90 डिग्री एक 270 डिग्री, तो एक साइड रनवे 27, एक साइड रनवे 09। ठीक है, आगे रनवे रेसिप्रोकल का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। So this was runway designator. Center line, as I told, a line, a imaginary line, ठीक है, or you can simply say a line which splits the runway into two equal part longitudinally is known as runway center line. Aiming point and touchdown zone, I have told, ठीक है, the zone marked for landing aircraft to touch down its wheel on this area is known as touchdown zone. The zone or area available for to touch the aircraft wheel on this area is known as touchdown zone. And aiming point helps aircraft to aim the touching of wheels over the runway. Aiming point helps the aircraft to touching down its wheel over the runway. इसको एम करके वो एयरक्राफ्ट के व्हील को टच करवाएगा। Now, do let me know while landing एयरक्राफ्ट का मेन व्हील पहले टच होता है या एयरक्राफ्ट का नोज लैंडिंग गियर का व्हील पहले टच होगा? मेन व्हील। Which one? मेन और नोज? मेन व्हील। मेन, ठीक है, एयरक्राफ्ट का मेन लैंडिंग गियर का व्हील पहले टच होता है। सो पायलट विल एम दियर मेन लैंडिंग गियर व्हील ओवर दिस एरिया, ठीक है। और बाय एनी चांस पायलट ने अगर नोज लैंडिंग गियर का व्हील भी यहाँ पे एम किया, फिर भी वो थ्रेशहोल्ड के आगे ही लैंड करेगा और थ्रेशहोल्ड पे लैंड करेगा। नेक्स्ट वन इज स्टॉप वे, ठीक है। अभी देखो, जो पक्का सड़क होता है ना उसको बोला जाता है पेव्ड, पक्के सरफेसेस को बोला जाता है पेव्ड सरफेस, PAVED, पेव्ड। कच्चे को बोला जाता है अनपेव्ड, ठीक है। सो स्टॉप वे, द एरिया, हमेशा ध्यान में रखना, एरिया एट द एंड ऑफ रनवे, ठीक है। स्टॉप वे हमेशा रनवे के एंड में होगा, भले वो दोनों एंड में होगा तो उसको हमेशा एंड से डेजिग्नेट करेंगे, जैसे थ्रेशहोल्ड को बिगिनिंग से डेजिग्नेट करते थे, भले वो दोनों साइड हो। उसी तरह स्टॉप वे, ठीक है, नाम से क्लियर है, द एरिया विच इज अनपेव्ड और
हाफ पेव्ड, आधा पक्का या कच्चा रहेगा, एट द एंड ऑफ रनवे टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट इन द केस ऑफ रनवे ओवरशूट या रनवे एक्सीडेंस। अगर किसी रीजन से एयरक्राफ्ट रनवे ओवरशूट कर जाता है, रनवे को छोड़ के बाहर निकल जाता है, या रनवे एक्सीडेंस हो जाता है, तो उस एयरक्राफ्ट का व्हील इस स्टॉपवे में फंस के रुक जाए। तो आइदर ये अनपेव्ड रहेगा, कच्चा रहेगा, इसकी मिट्टी ढीली रहेगी ताकि व्हील धसे, या फिर आधा पक्का रहेगा। आधा पक्का मीन्स रोड़ी बजरी या गिट्टी इन टाइप की चीजों को देके इस पे छोड़ दिया जाता है कि जब एयरक्राफ्ट आए तो इसमें व्हील पकड़ ले। दैट इज स्टॉप वे। नाउ नेक्स्ट इज होल्डिंग पोजिशन, एज यू कैन सी हेयर, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज रनवे होल्डिंग पॉइंट। क्या होता है? वेन यू एंटर टू द रनवे, ठीक है, वेन यू एंटर टू द रनवे, तो जहां पे आपका टैक्सी वे एंड होता है और रनवे के एंट्री पॉइंट पे, देखो इस रनवे पे आप कितने पॉइंट से एंट्री कर सकते हो? टोटल 5 पॉइंट से। तो रनवे के एंट्री पॉइंट पे ही ब्लैक और येलो कलर का हैच्ड लाइन आपको दिखेगा, ठीक है, रनवे के एंट्री पॉइंट पे ही। इट इंडिकेट्स कि बिफोर एंटरिंग टू द रनवे आप यहाँ पे वेट करो और टावर से पूछो कि आर यू क्लियर टू इंटर द रनवे और नॉट। ठीक है, ऐसा नहीं कि रनवे खाली दिखा तो आप रनवे पे इन कर जाओ, नो। कितना भी परमिशन मिला हुआ हो, आओ रनवे पे एंट्री करने से पहले वेट करो। उस पोजीशन को बोलते हैं रनवे होल्डिंग पॉइंट, ठीक है, या होल्डिंग पोजीशन। आप यहाँ पे वेट करोगे, टावर से पूछोगे, अगर टावर परमिट करेगा यस क्लियर टू एंटर द रनवे, देन ओनली यू कैन एंटर द रनवे। व्हाई? बिकॉज कई बार लैंडिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, आपको रनवे खाली दिखेगा लेकिन अपकमिंग ट्रैफिक है, तो आप एंटर कर जाओगे, कोई आपको पीछे से धक्का दे देगा। सो दिस पोजीशन इज नोन एज रनवे होल्डिंग पॉइंट, द मार्किंग ओवर द रनवे एंट्री पॉइंट्स, ठीक है, टू होल्ड द पोजीशन एंड सीक परमिशन फ्रॉम एटीसी बिफोर एंटरिंग टू द रनवे। तो उसको कहते हैं होल्डिंग पोजीशन या रनवे होल्डिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज एज लाइन मार्किंग। रनवे का एज ये होता है, ठीक है, साइड वाले लाइन को एज बोलते हैं और बीच वाले को सेंटर लाइन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज एप्रॉन, ठीक है, एप्रॉन, द डिफाइंड प्लेस ओवर एन एयरफील्ड। डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है, द डिफाइंड प्लेस ओवर एन एयरफील्ड वेयर विच, ठीक है, अभी आराम से, विच एकोमोडेट द एयरक्राफ्ट, जो कि एयरक्राफ्ट को अपने में समा लेगा, एकोमोडेट द एयरक्राफ्ट, या वेयर एयरक्राफ्ट कैन बी एकोमोडेटेड फॉर द पर्पस ऑफ, 4 पर्पस, पार्किंग, तो एप्रॉन का मेन पर्पस होता है पार्किंग, दूसरा फ्यूलिंग, तीसरा इम्बार्केशन या डिसइम्बार्केशन, पैसेंजर को उतारने चढ़ाने के लिए, और चौथा मेंटेनेंस। तो एप्रॉन, द डिफाइंड प्लेस ओवर एन एयरफील्ड विच एकोमोडेट द एयरक्राफ्ट, जो कि एयरक्राफ्ट को अपने में समा लेगा, एंड बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, मेन है पार्किंग, फ्यूलिंग, इम्बार्केशन एंड डिसइम्बार्केशन ऑफ पैसेंजर, चढ़ाना और उतारना, प्लस मेंटेनेंस। दैट प्लेस इज नोन एज एप्रॉन। एम आई क्लियर? और एप्रॉन के अंदर हर एक एयरक्राफ्ट को जो पार्किंग स्टैंड अलॉट होता है, कि जब एप्रॉन हो गया, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर वाला एरिया, ये पूरा हो गया एप्रॉन, इसके अंदर जो मार्क्ड अलॉटेड बे हैं या फिर स्टैंड हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बे और स्टैंड। द मार्क्ड प्लेस फॉर द पार्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट इनसाइड एन एप्रॉन इज नोन एज स्टैंड और पार्किंग बे, ठीक है, आइदर इसको बोलेंगे पार्किंग बे या फिर बोल सकते हो स्टैंड। द मार्क्ड प्लेस इनसाइड एप्रॉन टू पार्क द एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट,
टैक्सीवे, वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सीवे का, अच्छा सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सी? आपने अभी तक कभी टैक्सी या टोइंग, ये दोनों आपने सुने होंगे वर्ड, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, तो बताना चाहेगा? टैक्सी में मतलब उसको ट्रैक्टर से पुल उल करना है, टोइंग में बस ऐसे धक्का लेके आगे करना है ना, मतलब कोई भी नहीं, ट्रैक्टर का यूज नहीं उल्टा, करना। नहीं नहीं, दोनों टोइंग ही हो गए। अच्छा। टैक्सी में अनदर वन। एयरक्राफ्ट ऑन पावर से मूव करता है, टोइंग में बाय टो ट्रैक्टर से टोइंग किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चाहे आप हाथ से एयरक्राफ्ट को पुश करो या ट्रैक्टर से पुल करो या पुश करो, ये दोनों कहलाएगा टोइंग। तो टैक्सी और टोइंग में क्या डिफरेंस है? वाइल इन टैक्सी एयरक्राफ्ट विल मूव अंडर इट्स ओन पावर, एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करेगा, इंजन की पावर से, उसको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं है। टोइंग में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, चाहे आप उसको पुल करो ट्रैक्टर से खींच के, या पुश करो ट्रैक्टर से खींच के, या बाय हैंड, छोटा एयरक्राफ्ट है तो हाथ से धक्का दे दो। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टैक्सी एंड टोइंग। सो बाय द नेम इट इज क्लियर, टैक्सी वे, द पाथ या कॉरिडोर, ठीक है, द पाथ या कॉरिडोर वेयर एयरक्राफ्ट मूव अंडर इट्स ओन पावर, जहां पे एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करता है। कभी भी टैक्सी वे पे किसी एयरक्राफ्ट को पुल करते हुए आप नहीं देखोगे। अगर आपके एयरक्राफ्ट में पावर अवेलेबल नहीं है तो आप टैक्सी वे पे जाओगे ही नहीं। हाँ, अगर टैक्सी वे पे मूव करते करते ही आपका एयरक्राफ्ट खराब हो गया तो एनी हाउ टो करके लाना ही पड़ेगा। बट टैक्सी वे में एंट्री आप तभी कर सकते हो जब आपका एयरक्राफ्ट अपने पावर पे है, यानी आपके एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन है। तो द पाथ या कॉरिडोर ओवर एन एयरफील्ड, ओवर एन एरोड्रोम या एयरपोर्ट, वेयर एयरक्राफ्ट मूव अंडर इट्स ओन पावर। पहला पॉइंट क्या हो गया? मूव अंडर इट्स ओन पावर एंड, ठीक है, मूव अंडर इट्स ओन पावर एंड विच कनेक्ट्स द एप्रॉन टू द रनवे, ठीक है, विच connects the apron to the runway or any two point of the runway or any two of टैक्सी वे वो प्लेस होता है जो कि जहां पे एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ अपने पावर पे मूव कर सकता है। दूसरा, वो एप्रोन को रनवे से कनेक्ट करेगा या फिर रनवे के किसी दो पार्ट को कनेक्ट करेगा, उसको भी टैक्सी वे बोलेंगे। जैसे ये वाला जो टैक्सी वे जिसको मैं रेड कलर से राउंड कर रहा हूं, दिस इज टैक्सी वे, ये एप्रोन को रनवे से भी कनेक्ट कर रहा है, प्लस इफ आई टेल दिस पॉइंट एज ए एंड दिस वन इज द बी, तो सेम टैक्सी वे ए को बी से भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो जहां पे एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करे, विच कनेक्ट्स एप्रोन टू द रनवे एज वेल एज एनी टू पार्ट ऑफ द रनवे, रनवे के किसी दो पार्ट को भी कनेक्ट कर रहा है। और अगर वहां पे एयरक्राफ्ट सिर्फ अपने पावर से मूव कर सकता है तो वो कहलाएगा टैक्सी वे। तो तीनों कंडीशन जब आप एक आंसर में डालोगे तब टैक्सी वे का डेफिनेशन क्लियर होगा। क्या? एयरक्राफ्ट मूव अंडर इट्स ओन पावर विच कनेक्ट्स एप्रॉन टू द रनवे, नेक्स्ट एनी टू पार्ट ऑफ द रनवे। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार जब एयरपोर्ट बड़ा होता है तो सपोज आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो कई बार आपको बाउंड्री के किनारे किनारे या एप्रोन के बीच से एक रास्ता मिलेगा। आप अपने ग्राउंड व्हीकल्स को, जो भी आपके एयरपोर्ट पे बस हैं, कोई भी ग्राउंड मूवमेंट व्हीकल आपके पास है, तो आप यहां से चला के जा सकते हो, लेकिन टैक्सी वे पे व्हीकल लेके नहीं जा सकते हो। तो यहीं पे देखो कॉन्ट्राडिक्ट किया, किसी दो पार्ट को कनेक्ट तो एप्रोन भी कर रहा है, लेकिन क्या वो टैक्सी वे कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्सी वे पे सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट मूव करेगा, वो भी सिर्फ अपने पावर पे, कोई दूसरा व्हीकल एंट्री नहीं करेगा टैक्सी वे पे। होप आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। इस तीनों पॉइंट को समराइज करके लैंग्वेज बन जाएगा आप लोगों से, और शैल आई गिव अ क्लियर डेफिनेशन फॉर इट? डू लेट मी नो, डोंट हेजिटेट। टैक्सी वे समझ में आया? Okay, then explain what is the taxiway. Try.
ऐसा पाथ या Anyone? कॉरिडोर Mm-hmm. ऐसा पाथ या Go ahead. कॉरिडोर जिसमें हम्म, एयरक्राफ्ट अपना पावर से मूव कर सके, या फिर दूसरा हम्म। वो एप्रोन से कनेक्ट कर सके, नहीं, एप्रोन की एंड टर्न में, या फिर दूसरा नहीं, एंड साथ ही साथ एंड एंड अच्छा एंड हाँ, which which connects connects. apron to the runway and Mm-hmm. any 2 points of the runway. Very good. So that is known as taxiway. Clear? Now, अब देखो, जैसा टैक्सी वे का काम रहता है एयरपोर्ट पे, ठीक है, ध्यान से समझना, टैक्सी वे का जो काम है एयरपोर्ट पे, नाउ जस्ट हैव अ एग्जांपल ऑफ टैक्सी वे। ये जो आपको नोट मिलेगा उसमें मैंने दे के रखा है, तो आपको दिखेगा डेफिनेशन। टैक्सी वे का डेफिनेशन एक बार और अच्छे से देख लो। मार्किंग आ जा भाई। होल्ड इन अ सेकेंड, लेट मी जंप टू द पेज। हाँ, टैक्सीवे, टैक्सीवे इज डिफाइंड एरिया ऑफ एन एयरपोर्ट। इसको आप लिख सकते हो एनी पाथ और कॉरिडोर, ठीक है, एनी पाथ और कॉरिडोर वेयर एयरक्राफ्ट मूव अंडर इट्स ऑन पावर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। यस, ये मैं बताना भूल गया, ये ध्यान रखना। जहां पे एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करता है, टेक ऑफ और लैंडिंग भी तो एयरक्राफ्ट अपने पावर से ही करता है, एक्सक्लूडिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, एंड विच कनेक्ट टू डेजिग्नेटेड पॉइंट ऑन एन एरोड्रोम एंड एप्रॉन टू द रनवे। तो इन सारे चीजों को बोला जाएगा, इस ऐसे ऐसे पाथ या कॉरिडोर को बोला जाएगा टैक्सीवे, जहां पे एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करता है, एक्सक्लूडिंग टेक ऑफ और लैंडिंग, and which connects the runway to the apron and two designated point of an aerodrome, उसको बोलेंगे taxiway, ठीक है। and taxiing when aircraft move under its own power on the ground except take off and landing run, उसको बोलेंगे take off, sorry, taxi, ठीक है। where aircraft move under its own power on the ground except take off या landing run, तो taxi करेगा। क्लियर? नाउ, जैसा टैक्सी वे का काम होता है एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिमिलरली एप्रोन के अंदर उसको बोला जाता है रैम्प, ठीक है, एप्रोन के अंदर उसको बोला जाता है रैम्प। जैसा एयरपोर्ट पे दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए टैक्सी वे चाहिए, तो विद इन द एप्रोन द पाथ या कॉरिडोर विच विल कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्किंग वे और stands within the apron, that will be known as ramp. क्लियर? एयरक्राफ्ट रैंप पे है तो हम लोग रैंप जैकेट पहन के जाते हैं, राइट? सिमिलरली ये जो पाथ या कॉरिडोर विद इन द एप्रॉन विच कनेक्ट्स द पार्किंग स्टैंड्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, दैट इज नोन एज रैंप। यहां पे भी कई बार एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करता है, आएगा और पार्किंग स्टैंड में लग जाएगा, बट जब वो बैक ट्रैक होगा, जब उसको पीछे जाना होगा, तब एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव नहीं करता है, तो यहाँ पे ग्राउंड टोइंग व्हीकल्स की भी जरूरत पड़ती है। सो रैंप के केस में आप सीधे इतना बोलोगे, द पाथ या कॉरिडोर अवेलेबल विद इन द एप्रॉन विच कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एप्रॉन एंड पार्किंग स्टैंड्स। क्लियर? रैंप का डेफिनेशन, yes, no, anything clear? Yes, sir. Clear. ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉप वे हमने पढ़ लिया, द एंड ऑफ ए रनवे विच इज अनपेव्ड और हाफ पेव्ड, ठीक है, वेयर एयरक्राफ्ट विल स्टक इन केस ऑफ रनवे एक्सीडेंट्स ऑफ और रनवे ओवरशूट। समथिंग इज नोन एज क्लियर वे, ठीक है, क्लियर वे, क्लियर वे इज एन एयर स्पेस, ठीक है, द एयर स्पेस लेफ्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड, अनऑब्स्ट्रक्टेड बिना किसी रुकावट के, अनऑब्स्ट्रक्टेड द एयरवे
left unobstructed in front of runway is known as clear way, which helps the aircraft for initial takeoff. Clear? The airway left unobstructed ahead of runway, which helps the aircraft in initial takeoff phase. क्लियर? समझ में आया? यस सर। So this was the sum of the part of a runway. उसके बाद आप देखो इस फोटो में आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। समन में आस्क कि सर डी-आइसिंग एरिया दिया हुआ है, प्री थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, पापी दिया हुआ है, ये सब तो आपने बताया नहीं। लाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। PAPI जो है दैट इज प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, ये एक टाइप का लाइट होता है। तो हम जब लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो पापी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्री थ्रेशोल्ड। अगर थ्रेशोल्ड से पहले कुछ एरिया दे दिया गया है कि अगर कुछ बड़ा एयरक्राफ्ट आता है, बड़ा एयरक्राफ्ट जो कि रनवे पे राउंड नहीं कर सकता है, रनवे पे मूव नहीं कर सकता है, रनवे पे अलाइनमेंट नहीं बैठ सकती है, तो उसको थोड़ा सा एरिया दे दिया जाता है। पीछे बड़े स्पैन का एयरक्राफ्ट आ गया, एयरबस 380, उसका स्पैन मूव करने के लिए इतना सारा रनवे विड्थ काफी नहीं है, तो वो अपने एयरक्राफ्ट का मूवमेंट प्री थ्रेशोल्ड एरिया में करेगा। या फिर कई बार प्री थ्रेशोल्ड एरिया एयरक्राफ्ट के हाई पावर रनअप के लिए अलॉट किया जाता है। जब आपके एयरक्राफ्ट को इंजन को हाई पावर रन करना होता है तो आपको प्री थ्रेशोल्ड एरिया दिया जाता है कि जाके वहां पे आप अपना हाई पावर निकाल लो। या फिर कुछ एयरपोर्ट पे रनवे के अपोजिट साइड पे हाई पावर वे बना दिया जाता है कि जब आप मेंटेनेंस चेक करोगे और आपके एयरक्राफ्ट का फुल पावर में इंजन रन करना है तो उस साइड जाके करो, ताकि आपके एयरक्राफ्ट का एग्जॉस्ट किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टर्ब नहीं करे। नहीं तो किसी बिल्डिंग को तोड़ सकता है, किसी एयरक्राफ्ट को डिस्टर्ब कर सकता है, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स उड़ जाएंगे। देन यू हैव सीन नंबर 2, डी-आइसिंग एरिया। ये इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में आइस डी-आइस करते रहते हैं। तो इस वाले सरफेस को ऐसा बनाया जाता है जो कि पानी सोखे, वहां पे जाओ, आराम से डी-आइसिंग फ्लूइड मार के फ्लश करो, आपका सारा आइस मेल्ट होके पानी बन जाएगा और ये पानी यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। आप एप्रोन गंदा मत करो, एप्रोन पे आप पानी दे दोगे, एप्रोन डैम्प हो जाएगा, ठीक है, तो उसको गंदा मत करिए। तो डी-आइसिंग एरिया ऑप्शनल। कई बार किसी किसी एयरपोर्ट पे आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं आइसोलेशन वे, ठीक है, आइसोलेशन वे या फिर आइसोलेटेड वे। इसका क्या मतलब है? नाम से देखो क्लियर है। आइसोलेटेड मतलब जिसको दूर रखा गया है। क्या होता है, कई बार एयरक्राफ्ट में या कहीं पे बॉम्ब थ्रेट आया या फिर किसी एयरक्राफ्ट में कुछ खराबी पता चली कि कुछ खराब हो जाएगा, तो हम एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा एरिया प्रिजर्व करके रखते हैं जो कि दूसरे से आइसोलेटेड है, अलग हो, कि अगर किसी टाइप का एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाए तो दूसरे किसी भी फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचे। तो जनरली रनवे के अपोजिट एंड में, रनवे के दूसरे साइड में आइसोलेटेड वे बना दिया जाता है कि अगर किसी एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जाके पार्क कर लो, यहाँ पे जाके देखो क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपका एयरक्राफ्ट नॉर्मल ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है। तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड वे, जिसको अलग रखा गया हो, आइसोलेट करके रखा गया हो। क्लियर? इसके अलावा अगर आपको कुछ एरिया है कि अगर आपने सुना हो और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है। अगर आपने कभी कुछ सुना हो, यू कैन लेट मी नो। कुछ है मन में डाउट अदर देन दीज जो मैंने बताया? नहीं सर। नहीं? ठीक है, कोई नहीं। आपको सर। डाउट नहीं रहेगा तो डाउट मुझे रहेगा। डंबल एरिया कभी कभी किसी ने सुना होगा। डंबल एरिया क्या होता है? डंबल एरिया कोई बात नहीं। जब आपने एक एयरक्राफ्ट का हाई पावर रन अप करते हो तो किसी किसी एयरपोर्ट पे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है कि आप अपने एयरक्राफ्ट का इंजन हाई पावर से रन करो, आपके एग्जॉस्ट को ये ऊपर हवा में फेंक देगा, ठीक है।
आपके एयरक्राफ्ट का एग्जॉस्ट किसी दूसरे इमीडिएट फैसिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उसके लिए बनाया जाता है डम्बेल एरिया. डम्बेल एरिया इज द अनदर नेम ऑफ हाई पावर बे. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको कभी कुछ नाम याद आए, कुछ पता चले, यू कैन लेट मी नो कि सर मैंने ऐसा एक वर्डिंग सुना है कि एयरपोर्ट का ही पार्ट होता है, ये क्या होता है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, रनवे डिजिग्नेशन में ही कि रनवे में क्या क्या होता है. आई एम शोइंग वन पिक्चर वेयर इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू. जस्ट हैव अ लुक. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमिंग पॉइंट, टचडाउन जोन, ये सब एक क्लियर पिक्चर में, एंड दिस इज द रियल इमेज, सो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट. रनवे कौन सा है ये वाला? हु इज गोइंग टू टेल? रनवे नंबर क्या है, डेजिग्नेशन? रनवे 13. Okay, then you only will tell what will be the reciprocal of runway 13. रनवे 23 reciprocal, sir. Why? Why 2-3? It will be runway 3-1. 1, yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अगला टॉपिक है. Okay. Now you can see in this image, it is very clear runway threshold, runway designator. हाँ, जो लिखा हुआ है landing designator, that is in actual a runway designator. ठीक है. तो ऐसा क्या है ना कि एविएशन में बहुत सारे टर्म, या एविएशन में नहीं, इंग्लिश में बहुत सारे टर्म ओवर द कंट्री चेंज होते रहते हैं. ये फोटो तो मैंने गूगल से उठाया, तो जिस कंट्री वालों ने बनाया होगा उसने अपने हिसाब से इसका नाम लिखा. तो जो लैंडिंग डेजिग्नेटर है दैट इज इन एक्चुअल अ रनवे डेजिग्नेटर. ठीक है. उसके बाद आप देखो रनवे सेंटर लाइन, एमिंग पॉइंट, इट इज वेरी क्लियर. टचडाउन जोन मार्किंग कितना अच्छा है, एज मार्किंग. ब्लास्ट पैड अभी मैंने आपको बताया था हाई पावर बे दिया जाता है प्री थ्रेशोल्ड एरिया पे, राइट. तो देखो यहाँ पे उसको बोला है ब्लास्ट पैड कि आप अपने एयरक्राफ्ट का हाई पावर रन कर लो इधर. उसके बाद आप देखो राइट साइड ऑफ द रनवे जो एक पतली सी रोड रनवे के पैरेलल गई हुई है, वो क्या है? टैक्सी वे. क्लियर. और देखो जिस टैक्सी वे और रनवे के बीच में जो 4-5 रनवे एंट्री पॉइंट है, इसमें हालांकि एक्चुअल मार्किंग बना हुआ नहीं है, बट रनवे में एंटर करने से इमीडिएट पहले जो रनवे एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे बना होता है रनवे होल्ड पोजीशन. ठीक है. उसको बोलते भी हैं रनवे होल्डिंग पॉइंट. क्लियर. Yes, sir. Am I? Yes, ठीक sir, है. audible. ओके. नाउ विल सी सम बेसिक लाइट्स. बेसिक लाइट. ठीक है. अभी क्या है, टैक्सी वे का ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 में. टैक्सी वे का एज लाइट ब्लू कलर का होगा. ठीक है. टैक्सी वे का यहाँ पे आपको टैक्सी लाइट दिखा होगा, दैट इज इन एक्चुअल अ टैक्सी वे लाइट. ठीक है. टैक्सी वे का लाइट, टैक्सी वे का एज लाइट ब्लू कलर का, और टैक्सी वे का सेंटर लाइन ग्रीन कलर का. क्लियर. इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछता है सेंटर लाइन ग्रीन, एज लाइट ब्लू. इसके अलावा किसी भी एयरपोर्ट के किसी भी एरिया को अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि हमारा ये एरिया इंगेज है, तो आप उसको ब्लू कलर के लाइट से, ठीक है, घेर के रख दो. अगर आपने मान लो कि यहाँ पे एक स्टैचू बनाया, आपने बहुत अच्छा एयरपोर्ट बनाया और चाहते हो कि यहाँ पे महात्मा गांधी का स्टैचू लगे, तो अगर रात में कोई एयरक्राफ्ट लैंड करेगा तो उसको तो दिखेगा ही नहीं कि ये वाला एरिया इंगेज है कि क्या है, खाली है कि क्या है. तो वो लैंड करना चाहा, पता चला गांधी जी टकरा गए बीच में, या फिर रनवे पे लैंड नहीं कर पाए किसी रीजन से. अगर रनवे पे लैंड कर भी पाया तो उसको ये नहीं दिखा कि ये वाला एरिया खाली है या भरा हुआ है, तो उसने लेफ्ट साइड से लैंड किया और उसका विंग टच हो गया, तो गांधी जी का मूर्ति भी टूटेगा, एयरक्राफ्ट भी टूटेगा, एक्सीडेंट भी होगा. तो आप कैसे बताओगे कि ये वाला एरिया ऑक्यूपाइड है? इसके चारों ओर ब्लू कलर के लाइट लगा दो. क्लियर. तो टैक्सी वे का सेंटर लाइन ग्रीन कलर का,
एज लाइट ब्लू कलर का। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रनवे का लाइट, ठीक है, रनवे का लाइट, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा विल टेल में रनवे लाइट के बारे में। कैसा होता है रनवे का लाइट, क्या है उसका इंडिकेशन, किस कलर का होता है, क्या रहता है? वाइट कलर होता है सर सेंटर में, हम्म, और इन 3 पार्ट में वो रहता है, वाइट, वाइट एंड रेड। नहीं, थोड़ा और अच्छे से। चलो, रनवे का एज लाइट, ठीक है, एम्बर, और ये एम्बर नहीं है, हालांकि मैंने येलो बनाया है, थोड़ा सा येलोइश रहता है, एम्बर और व्हाइट रनवे एज लाइट, ठीक है। रनवे सेंटर लाइन थोड़े कलर कोड में होते हैं, कैसे? इनिशियल पोर्शन ऑफ रनवे सेंटर लाइन विल बी ऑफ व्हाइट कलर, in the middle section it will be a mixture of white and red, ठीक है, and towards the end of runway it will be turn completely red। इसका एक पर्पस है, क्या? जब आप रात में रनवे में एंटर करोगे तो आपको दिखेगा कि ये व्हाइट है, यानी हम सेफ जोन में हैं। व्हाइट एंड रेड आने लगा यानी आप रनवे के मिड सेक्शन में हो। रेड आ गया, रनवे खत्म होने वाला है। अगर आपका एयरक्राफ्ट का स्पीड रिड्यूस नहीं हो पाया, आप ब्रेक लगाने लायक नहीं हो पाए हो, तो एयरक्राफ्ट को लेके उड़ जाओ, नहीं तो आप लैंड कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। So red color indicates the ends of a runway, white indicates the beginning of a runway, and middle section it is a combination of white and red color, ठीक है। So if somebody will ask what is the runway lights, you can simply say edge light is of white or amber color, center light of a runway is white in initial phase, a combination of white and red in middle section of the runway, and a series of red color at the end of runway. Am I clear? Series of red color at the end, combination of white and red in the middle, series of white color in the initial phase या initial portion of the runway. Hope I was clear about this. Was it clear? Yes sir. Now you can see, ये वाला फोटो देखो, आपको दिखेगा। शुरू में देखो व्हाइट कलर का है, धीरे धीरे व्हाइट रेड, और लास्ट में जाते जाते रेड हो गया। सो दैट इज रनवे सेंटर लाइन। एज लाइट देखो, व्हाइट या येलोइश कलर का आपको दिखेगा, ठीक है, तो एम्बर या व्हाइट। बाकी ये सारे लाइट्स आप देखोगे, पापी लाइट्स, अप्रोच लाइट्स, ये सब हम धीरे धीरे जब लाइट्स वाला पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल के लिए ये जरूरी नहीं है, राइट। हम लोग जब लाइट्स के टॉपिक पे आएंगे स्पेशली, तब इसको अच्छे से देखेंगे। यू कैन सी द सेंटर लाइन एंड एज लाइट फॉर नाउ, क्लियर। यहां देखो, रनवे होल्डिंग पॉइंट यहां पे आपको दिखेगा, अच्छे से दिख रहा है, दिस इज रनवे होल्डिंग पॉइंट, क्लियर। तो एयरक्राफ्ट एंटर करने से पहले यहां पे होल्ड करेगा, यहां पे एयरक्राफ्ट एंटर करने से पहले होल्ड करेगा और पूछेगा कि रनवे में जाने से परमिटेड हूं कि नहीं। किसी भी एयरपोर्ट पे, ठीक है, जो रनवे होल्डिंग पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आता है, नोट करो। रनवे होल्डिंग पॉइंट जो होता है रनवे सेंटर लाइन से 60 मीटर 60 मीटर्स दूर रहता है, ठीक है। तो अगर रनवे दोनों साइड से एंट्री के लिए परमिशेबल है तो 60 मीटर्स ऑफ रनवे खाली रखा जाएगा। कोई भी एयरक्राफ्ट 60 मीटर से ज्यादा बड़ा अभी तक बना नहीं है। 20 मीटर 30 मीटर से ज्यादा स्पैन जनरली होता नहीं है। तो अगर हमने 60 मीटर का एक साइड में डिस्टेंस दिया है तो दूसरा साइड तो सेफ ही रहेगा, ठीक है। तो 60 मीटर दूर होता है एयरक्राफ्ट रनवे होल्डिंग पॉइंट फ्रॉम द रनवे सेंटर लाइन, क्लियर। और ये सामने से जो आप लाइट देख रहे हैं इसको बोल रहे हैं अप्रोच लाइट। ये है पापी लाइट जिसमें एरो बना हुआ है, प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। ये आपके वर्टिकल गाइडेंस में यूज आता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको जब देखेंगे तो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सम ऑफ द लाइट्स एंड अबाउट
रनवे इंडिकेशन एंड एयरफील्ड रिव्यू इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपने एयरपोर्ट को नहीं देखा तो आई होप कि ये सब देख के आपको आइडिया लगा होगा कि जनरल में ऑपरेशन के लिए एयरपोर्ट कैसा दिखता है। वाज इट हेल्पफुल? समझ में आया? यस सर। Okay. Now we'll see the next topic. What is left to explain? आज हमने देखा रनवे एंड इट्स पार्ट along with lights. ठीक है, बस खत्म हो गया लेक्चर 3। इससे ज्यादा लेक्चर 3 में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, कल रहेगा लास्ट डेमो सेक्शन। विल सी कि हाउ मेनी विल ज्वाइन और हाउ मेनी विल कंटिन्यू फर्दर। तो कल हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे, अच्छे से कुछ नए नए टॉपिक्स देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज मैं कुछ छोटा सा टॉपिक देखता हूँ कि क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एंड आई होप कि दीज 3 days लेक्चर वाज इनफ टिल नाउ। 3 days के लेक्चर अभी तक के लिए काफ़ी हैं। तब तक कुछ छोटा सा टॉपिक होता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लाइट रूल, यस, फ्लाइट रूल एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आज 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, आगे देखा जाएगा। अभी तक हमने देखा क्या क्या। हाँ, ये लेक्चर प्लान मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्रॉप कर रखा है, तो आप लोग अपने ग्रोथ को, अपने प्रोग्रेस को खुद से मॉनिटर कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट ले लो, टिक मार के रखो कि कितने सारे टॉपिक आपको आते हैं। सपोज कुछ कुछ पढ़ाते पढ़ाते मैंने नहीं पढ़ाया, तो आपने पैसा पे किया है, आपका एग्जाम है, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो अपने पढ़ाई को लेके, तो आप मुझे याद दिलाओ कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया। ठीक है, सपोज बीइंग अ टीचर मैंने बदमाशी करी, मैंने कोई टॉपिक स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमाइंड मी। हाउएवर मैं कुछ मिस नहीं करूंगा, बट ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप याद करो कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, पैसा तो ले लिया पूरा, तो आप मुझे याद दिलाओ कि हमारे एग्जाम का ये टॉपिक पेंडिंग रहा। तो अभी तक हमने पढ़ा रेडियो स्टेशन, ऑल रूल्स ऑफ 4W, रीडेबिलिटी स्केल, रेजिंग स्टेशन, रीडेबिलिटी चेक, aeronautical phonetics, reading of number, time, altitude and runway visual range, aerodrome and its part, definitions of aerodrome and its parts and lights। ठीक है, बाकी कुछ अप्रोच के लाइट्स हैं, ये हम उस टाइम पढ़ेंगे जब हमारे एयरक्राफ्ट का लैंडिंग वाला फेज स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे का हम 2 चीज देखेंगे, फ्लाइट रूल एंड इट्स डेफिनेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ रनवे। दिस इज वेरी शॉर्ट टॉपिक एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो हम लोग ये देख लेंगे। उसके अलावा हमने एटीसी ऑफिसर्स का हायरार्की देख रखा है पहले ही। हायरार्की मतलब जूनियर से सीनियर कौन कौन से हैं, एप्रॉन, ग्राउंड, टावर, अप्रोच, कंट्रोल, हमने देखा था, राइट। तो ये सब हमने टॉपिक कवर कर रखे हैं अभी तक। अगर इन सारे टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन लेट मी नो कि ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था। आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम, जिसको मैंने टिक कर रखा है। किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फ्लाइट रूल। वेरी सिंपल। हाउ मेनी फ्लाइट रूल्स यू हैव हर्ड ऑफ? आपको अभी तक में कितने फ्लाइट रूल्स के बारे में आपने सुना? IFR, VFR, ऐसा कुछ सुना कभी किसी ने? क्या होता है? विजुअल फ्लाइट रेंज, इंफ्रारेड वैसे करके है ना, कि मतलब IFR रहेगा तो रूल, नाइट में भी फ्लाई कर सकता है, VFR है तो सिर्फ डे। विजुअल फ्लाइट रेंज नहीं, रूल। मैंने भी मिस्टेक किया था अपने कॉलेज के टाइम पे, मुझे रेंज याद था बट दैट इज एक्चुअल रूल। विजुअल फ्लाइट रूल एंड कहीं रेंज इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ फ्लाइट है। रूल, रूल दैट इज रूल। ठीक है, विजुअल फ्लाइट रूल एंड इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, 2 रूल हमने अभी तक पढ़े हैं। क्या है? सिंपल, देखो डिफिनेशन से समझते हैं बट हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझना। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो अपने से लैंग्वेज बना के एक्सप्लेन करो। ठीक है, हालांकि IFR और VFR का डेफिनेशन आपको बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत कम जगह या ना के बराबर नहीं मिलेगा। स्क्रीन तो ये शेयर जो कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा अंकुश। अच्छा अच्छा अच्छा, यस, यू रिमाइंड मी राइटली, स्क्रीन इज नॉट बीइंग शेयर्ड नाउ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं।
विजुअल फ्लाइट रूल एंड इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, हमने ये दोनों पढ़ा था, राइट? कंफर्म इफ इट इज विजुअल नाउ। डन विजुअल। So, Acha, I was saying about my lecture plan. I think that time also screen was not visible, right? So let me just go little back about the lecture plan. ठीक है? Lecture plan I was saying कि ये वाला आपको WhatsApp ग्रुप पे ड्रॉप किया हुआ है लेक्चर प्लान, तो आप इसको फॉलो करके अपना प्रोग्रेस, अपना ग्रोथ खुद से मॉनिटर कर सकते हो इन क्लासेस कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ा है। फॉर नाउ लेक्चर 3 तक के सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और ATC ऑफिस हायरार्की हमने पढ़ा हुआ है। आज के लिए हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रनवे एंड फ्लाइट रूल्स एंड इट्स डेफिनेशंस। तो इन सारे टॉपिक्स में अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन लेट मी नो कि मुझे ये नहीं पता है, आई कैन एक्सप्लेन वन मोर टाइम, नेवर ए प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम इन सारे टॉपिक्स में जहां पे मैंने टिक मारा है अभी तक? ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक वाज फ्लाइट रूल। नाउ यू कैन सी ये जो डेफिनेशन है IFR एंड VFR का, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है इतने अच्छे से, बट क्या है कि आपने जो भी डेटा सोर्सेज अभी तक जुटाए, जो भी आपको पता है, अगर आपने उसको समझा हुआ है तो अपने साइड से लैंग्वेज बना के लिखो, इट इज परमिसेबल। अपने साइड अपने टाइप से लैंग्वेज बनाओ, इट विल बी ऑलवेज वेल हेल्पफुल। तो अपने टाइप से लैंग्वेज बनाने का क्या मतलब, आप बस उसका डेफिनेशन समझो और उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करो। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, basically there are two flight rules only in the aviation, instrument flight rule and visual flight rule. Instrument flight rule क्या होता है? Instrument flight rule, when aircraft is being operated, completely relied on instrument reading data and indication, completely on the basis of instrument readings, data एंड इंडिकेशन। इंस्ट्रूमेंट्स ने जो हमको रीडिंग दी हम उसको सही मानेंगे, इंस्ट्रूमेंट ने हमको जो डेटा दिया हम उसी को करेक्ट मानेंगे, वहां पे जो इंडिकेशन आया हम उसी को करेक्ट मानेंगे। कंप्लीटली रिलायंस, कंप्लीटली भरोसा जता सकते हो ओवर द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग डेटा एंड इंडिकेशंस। नो विजिबिलिटी आउटसाइड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज रिक्वायर्ड, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। पायलट में ऑपरेट एंड टेक नेसेसरी एक्शन on the basis of reading and instructions comes from the aircraft instruments. सपोज आप लैंड कर रहे हो, आपके एयरक्राफ्ट ने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया पुल अप, EGPWS का वार्निंग, तो अब पायलट झांक के देखेगा नहीं विंडशील्ड से कि क्या हो गया, क्यों पुल अप कर रहा है। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ने बोला पुल अप, तो आंख बंद करके पहले एयरक्राफ्ट को पुल अप करो, एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराओ, बाद में देखेंगे ये वार्निंग आई क्यों। तो आप अपना पूरा का पूरा एक्शन प्लान बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इन केस ऑफ IFR। Such aircraft may have a large number of instruments and sensors, बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स लगे होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के फ्लाई को सेफ बनाते हैं, which make aircraft fly safely। कैसे? डिस्टिंग्विशिंग मतलब होता है पता करके, पता लगा के, किस चीज का पता लगा के, हर एक पैरामीटर्स का पता लगा के कि अल्टीट्यूड कितना है, आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है, आउटसाइड का प्रेशर कितना है, अंदर कितना प्रेशर है, आप अर्थ से कितने दूर हो, कितने क्लोज हो, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर हो, कौन से कंट्री के ऊपर हो, टेरेन के ऊपर हो या सी के ऊपर हो, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो डिस्टिंग्विशिंग मतलब पता लगा के। एंश्योरिंग, ये इंश्योर करके कि ऑल सिचुएशंस आर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, एंड प्रोवाइड इंटेलिजेंस इन केस ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, कुछ भी एबनॉर्मल हुआ तो इंटेलिजेंस देगा। कैसे? अर्थ से ज्यादा क्लोज हो रहे थे या आपका लैंडिंग के टाइम पे बैंकिंग एंगल ठीक डिसेंट एंगल ठीक नहीं था, तो GPWS इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, पुल अप ऊपर खींचो, यही तो है इंटेलिजेंस अबाउट एबनॉर्मल सिचुएशन। टेरेन के पास आ गए, टेरेन चिल्लाएगा, इंटेलिजेंस दिया। दो एयरक्राफ्ट हेड टू हेड सामने आ गए,
बोलेगा ट्रैफिक, ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक अलर्ट। पायलट फिर भी नहीं सुना तो ऑटोमेटिक डिसीजन ले लेगा, एक एयरक्राफ्ट राइट, दूसरा लेफ्ट, एक अप, दूसरा डाउन। तो ये सब काम करता है आईएफआर। तो ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि आईएफआर अप्रूव्ड होते हैं उनमें ये सारे सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, जहां पे पायलट पूरा का पूरा भरोसा जता सकता है ओवर द इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वन इज VFR, विजुअल फ्लाइट रूल। When the aircraft is being operated by viewing outside of the cockpit, जहां पे बाहर देख के उड़ाना नेसेसरी है। पायलट डिस्टिंग्विश सेफ ऑपरेशन बाय, ठीक है, पायलट यहां पे कौन डिस्टिंग्विश करता था सेफ ऑपरेशन? इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंसर्स। VFR के केस में पायलट खुद पता लगाएगा सेफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट बाय इंश्योरिंग नॉर्मल सिचुएशन एंड सेफ इन्वायरमेंट आउटसाइड, खुद से देख के। इन दिस रूल इंटेलिजेंस में ऑल्सो ऑब्टेन्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट। VFR फ्लाई करते रहोगे और आपका एयरक्राफ्ट अगर IFR कैपेबल है तो ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट्स में रीडिंग आनी बंद हो जाएगी, लेकिन पायलट विल टेक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय व्यूइंग आउटसाइड द रियल सिचुएशन एट ऑन, खुद से देख के। अगर VFR फ्लाई कर रहे हो, उसने टेरेन टेरेन बोलना शुरू किया, तो आप झांक के देखो कि सही में पहाड़ है भी कि नहीं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देगा VFR में, लेकिन पायलट अपनी जिम्मेदारी से खुद बाहर देख के ये इंश्योर करेगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। क्लियर? समझ में आया VFR एंड IFR? Yes, sir. Okay. We'll take a break of 2 minutes. Not 2, we'll take a break of 4 minutes. At 2215, we'll join it again. ठीक है? You can have a tea, coffee, water, whatever you are having. Just have it. We'll meet again at 2215. 4 मिनट का ब्रेक।
ओके, हैव एवरीवन जॉइन बैक? सब लोग आ गए? यस सर। ओके, देन डू द रीडेबिलिटी चेक. करो रीडेबिलिटी चेक करो कंप्लीट. Bangalore ground, Vector Tango Sierra Romeo Juliet 125.9. How do you read? हाँ, ऑन. अच्छा, आपने पॉइंट भी बोला, 9 भी बोला. Oh, sorry, ऑन sorry. 125.9. से अगेन, नॉट अ प्रॉब्लम. चलो, होता है Bangalore इसलिए तो ground, प्रैक्टिस करवाते हैं. Sierra Romeo. Sorry. Bangalore ground, Vector Tango Sierra Romeo Juliet 125.9. How do you read? रीडिंग U5 Victor Tango, correction, Victor Tango Sierra Romeo Juliet, Bangalore ground, reading U5. ठीक है. So I was saying VFR and IFR, right? Now, confirm if my screen is being shared. Visual है अभी? Yes, sir. तो हम लोग देख रहे थे ओवर VFR and IFR. अब क्या होता है? Flying of IFR is mandatory if you want to operate above 15,000 feet. 15,000 फीट से ऊपर उड़ाना चाहते हो, आपके जहाज में IFR लगा होना चाहिए, मैंडेटरी. उसके नीचे IFR या VFR दोनों चलेगा, लेकिन 15,000 के ऊपर ओनली IFR. उसके अलावा टू ऑपरेट द एयरक्राफ्ट अंडर VFR देयर इज अ टाइमलाइन डिसाइडेड. डे ऑपरेशन क्या है वो टाइमलाइन, कोई बताएगा कि किस टाइम के बीच में आप VFR फ्लाई कर सकते हो? एनीवन? अल्फा जूलियट डेल्टा. 30 मिनट बाद सनराइज एंड 30 मिनट पहले सनसेट. वेरी गुड. आप VFR में एयरक्राफ्ट तभी फ्लाई कर सकते हो ओनली आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ सनराइज. ठीक है, 30 मिनट्स आफ्टर सनराइज. सूरज के उगने के आधे घंटे के बाद, यानी मॉर्निंग में सूरज जब उगता है उसके आधे घंटे बाद, प्लस 30 मिनट बिफोर सनसेट, सनसेट होने के आधे घंटे पहले तक ही आप VFR में ऑपरेट कर सकते हो. उसके बाद आपको IFR चाहिए. क्लियर? नाउ, IFR ऑपरेट करने में आपके एयरक्राफ्ट में ILS सिस्टम भी होना चाहिए. ठीक है, तो सपोज आप किसी ऐसे एयरपोर्ट पे हो जहां पे ILS सिस्टम अवेलेबल नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है या फिर प्राइवेट एयरफील्ड है, ILS सिस्टम पे खर्चा नहीं किया उसने, तो जिस एयरपोर्ट से आप मान लो कि टेक ऑफ कर रहे हो, टेक एन एग्जांपल ऑफ सम लोकल एयरपोर्ट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, ऐसे अभी तो बड़ा हो गया है, जस्ट फॉर अ से टेक इट एज ए जबलपुर. ठीक है, जबलपुर में जो एयरपोर्ट है वहां पे ILS सिस्टम नहीं है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे तो ILS सिस्टम है. तो जब आप जबलपुर से टेक ऑफ या जबलपुर में लैंड करोगे तो इस जगह पे आप IFR फ्लाई नहीं कर सकते, आपको हमेशा VFR ही करना पड़ेगा. बट दिल्ली में आप दोनों कर सकते हो, IFR या VFR. सो इन एविएशन अगर आपसे RT में अगर कोई पूछे कि कितने सारे फ्लाइट रूल हैं, तो ना तो सिंपली बोलो 2 फ्लाइट रूल है IFR या VFR, और ना ही बोलो 4 जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, जनरली IFR और VFR 2 ही फ्लाइट रूल होते हैं, लेकिन एग्जाम में RT में 4 फ्लाइट रूल कंसीडर किए जाते हैं. एक होता है फ्लाइट रूल यांकी, जब आपका एयरक्राफ्ट इनिशियली IFR में फ्लाई कर रहा है और किसी रीजन से उसको VFR में कन्वर्ट होना पड़ रहा है रास्ते में, तो वो कहलाएगा फ्लाइट रूल यांकी. दूसरा है फ्लाइट रूल जुलू, आपका एयरक्राफ्ट इनिशियल फेज में VFR फ्लाई कर रहा था, रास्ते में किसी रीजन से उसको IFR में कन्वर्ट होना पड़े, उस केस में वो कहलाता है फ्लाइट रूल जुलू. तो टोटल 4 फ्लाइट रूल हैं अपने पास. लेकिन अगर आपसे पार्ट 2 में पूछता है कि कितने फ्लाइट रूल हैं,
तो ना तो सिंपली बोलो 4 और ना ही बोलो 2, मिक्स करके बोलना है. बेसिकली देयर आर 2 फ्लाइट रूल ओनली. However, on the basis of operation, we are considering 4 flight rule: IFR, VFR, Yankee, and Zulu. Yankee, when aircraft initially operates under IFR and it converted to VFR on their destination end. Zulu, when aircraft operate under VFR, ठीक है, initially and converted onto IFR near to its destination. So that is flight rule Zulu. Am I clear over this? चारों रूल समझ में आए? लेकिन कभी भी कोई आपसे पूछे तो ना तो 4 बोलो ना 2 बोलो, दोनों बोलो. आपसे ऑब्जेक्टिव तो कोई पूछेगा नहीं कि टिक मारने आ गया ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4. तो आप बोलो होल्ड करके. बेसिकली देयर आर 2 फ्लाइट रूल ओनली, IFR and VFR. However, on the basis of operation, we are having consideration of 4 flight rule: IFR, VFR, Yankee, and Zulu. Yankee, when aircraft initially operates under IFR and later on it converted to VFR. Flight rule Zulu, initially when aircraft operated under VFR and later on it converted onto IFR. That is known as flight rule Zulu. Clear? Yes, no, anything? यस सर. Chalo. Last topic for today is reciprocal of runway. How to find the reciprocal of runway? Reciprocal का मतलब होता है हमेशा अपोजिट, उल्टा. ठीक है, जैसे नहले का उल्टा दहला, इस टाइप से. नॉट एग्जैक्टली मैं वो फ्रेज नहीं बोल पाया, बट हिंदी में बहुत सारे मुहावरे होते हैं ना जहां पे उल्टा किसी चीज को बोला जाता है कि इसके अपोजिट वो है. सिमिलरली अगर बोला जाता है कि रनवे रेसिप्रोकल ऑफ रनवे, तो एक ही रनवे एक एंड पे 27 यानी 270 डिग्री बनाता है और सेम रनवे आपस में दूसरे एंड पे 90 डिग्री का बना के देता है एंगल अलोंग विद द मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ एन अर्थ. इस केस में जो रनवे का अपोजिट एंड है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है. यानी रनवे 27 जो है रनवे 09er का रेसिप्रोकल रनवे है. अब रेसिप्रोकल निकाला कैसे जाएगा? वेरी सिंपल. एनी लाइन ओवर एन सर्कल और एनी स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एक स्ट्रेट लाइन का दो एंड 180 डिग्री अपार्ट होता है, राइट? इन मैथमेटिक्स वी हैव सीन दिस. 180 डिग्री का गैप रहेगा एक स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट पर. तो कोई भी रनवे डिजिग्नेशन, रनवे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है, तो दोनों एंड एक दूसरे से 180 डिग्री का डिस्टेंस रखते हैं. तो विल अंडरस्टूड बाय द एग्जाम्पल. सपोज हमको निकालने के लिए बोल दिया रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 27 एंड रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 12. एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत इजी रहेगा समझना, इसलिए बोल रहा हूं. ठीक है, इमेज आपके सामने है, देखो 00 और 360 उसका रेसिप्रोकल होगा 180, 270 का रेसिप्रोकल होगा 90. नाउ सपोज वी हैव told to find the reciprocal of runway 27 as per the example given in the class note and runway 12. How to find that? Just have a see. सबसे पहले इसको एंगल में कन्वर्ट कर लो. It is 270 degree and it is 120 degree, right? Now if this figure is greater than 180, ठीक है, 270 जब आप कन्वर्ट करोगे तो जो एंगल आया अगर वो 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसमें 180 माइनस कर दो, और अगर वो 180 से छोटा है तो उसमें 180 ऐड कर दो. अब आप बोलोगे व्हाई 180? बिकॉज टू लाइंस आर 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इसीलिए हर एक फॉर्मूला का कोई लॉजिक होता है. तो अगर आपके पास जो ये फिगर आया अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा है तो इसमें 180 डिग्री घटा दो.
और अगर ये 180 डिग्री से छोटा है तो इसमें 180 डिग्री ऐड कर दो। तो हमने ऐड किया, हमको आया रनवे 0 यानी 90 डिग्री, और यहाँ आया 300 डिग्री। Divide it by 10, you will find the runway designation. Runway 09er, runway 30. So, runway 27 is reciprocal to runway 09er, and runway 12 is reciprocal to runway 30. Clear? समझ में आया? एक्सरसाइज करोगे? शो नहीं हो रहा था कैलकुलेशन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, हो रहा है। मतलब हो रहा है, जब रुक रहा है। अच्छा, कोई नहीं, मैं बैक कर देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक, आई एम एक्सप्लेन वन मोर टाइम। कंप्लीट कैलकुलेशन दिख रहा है स्क्रीन के पर? मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार और। वेरी गुड। सपोज हमको क्वेश्चन दिया गया है रनवे 27 और रनवे 12 का रेसिप्रोकल निकालने के लिए। सो विल सी वन बाय वन। सबसे पहले इस रनवे डेजिग्नेशन को कन्वर्ट करो एंगल में। तो 27 को 270 डिग्री और 12 का 120 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो उसमें 180 डिग्री माइनस कर देंगे, और अगर ये एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो उसमें 180 ऐड कर देंगे। तो 270 में 180 माइनस किया तो हमको मिला 90, और 120 में 180 ऐड किया तो हमको मिला 300। डिवाइड इट बाय 10 एंड यू विल हैव रनवे डेजिग्नेशन। 90 को 10 से डिवाइड किया तो रनवे 09er, 300 को 10 से डिवाइड किया तो रनवे 30। सो यू कैन से runway 27 is reciprocal of runway 09er and runway 12 is reciprocal of runway 30. Clear now? क्लियर। यस ठीक है। So we'll have exercise। ठीक है, सबको दो दो रनवे का रेसिप्रोकल निकालना है। मैं सबका कॉल साइन लेके क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीन पे। विल नीड आंसर so that only we can confirm कि if you have learned or not. Alpha Juliet Delta, reciprocal of runway 13 and 16. Sierra Romeo Juliet, reciprocal of runway 08 और runway 02. सॉरी, दोनों टाइप का देता हूँ मिक्स करके। रनवे 08 एंड रनवे 28। सिएरा ऑस्कर होटल, रनवे 30, रनवे 20। When you are ready, you can let me know the answer. वेक्टर ट्रायंगल अल्फा जूलियट डेल्टा रनवे 13 का सर, रनवे 13 का रनवे 31 होगा। रनवे थ्री वन, ठीक है, और 16 का 16 का 61। रनवे 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 34। वेरी गुड। नेक्स्ट, रनवे 8 का 26 और 08, रनवे रनवे 28 का 10। 8 पढ़ना ही नहीं है ना 8 पढ़ना है। से अगेन, रनवे 8, रनवे 08। हाँ 08 ही बोला था पहले। रनवे क्या है 08 का का जो आएगा वो आएगा 26 डिग्री, 26 डेसिमल, सॉरी डिग्री। नहीं, डिग्री भी नहीं। रनवे 26 सीधा, रनवे 260 डिग्री आया, हमने उसको रनवे में कन्वर्ट किया ना, सो रनवे 26। ठीक है, 26 और 28 का रनवे 10।
Runway 10. Very good. Another station. रनवे 30 का रनवे 12 और रनवे 20 का रनवे 02. 0. Very good. So this was the reciprocal of runway. Good. Now, whenever अभी तक के लिए बस आपने ये रनवे रेसिप्रोकल निकालना सीख लिया, दैट इज वेल एंड गुड. इसका जब यूज आएगा तब आपको पता चलेगा कि why it was important to understand. So to finding a reciprocal of runway is very simple. You can have on your fingertips. ठीक है? And this is very easy topic, so that easily can be explained. That's why today I had covered it. Done? Tomorrow will be the last demo session of this demo class of this session. कोई नया आता है तो आए, नहीं आता है कोई बात नहीं. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे एज पर आवर जर्नी प्लान. ठीक है, जस्ट फॉर अ सेक आई एम एक्सप्लेनिंग द टॉपिक. कौन कौन से हमने कवर कर लिए. कल हम लोग पढ़ेंगे इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है. तो कल हम लोग पढ़ेंगे इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर एंड फ्लाइट प्लान्स. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल सी यू टुमारो सेम टाइम 9 o'clock. डन. डेली 9 बजे हम लोग मिलेंगे. अच्छा, अगर मैं 9 बजे अवेलेबल रहूंगा क्लास में, ठीक है, या फिर 5-7 मिनट का डिफरेंस है, 2-4 मिनट का डिफरेंस है, तो उसके लिए कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा. अगर ग्रुप पे किसी भी टाइप का अपडेट नहीं है, किसी भी टाइप का चेंज नहीं है, मीन्स आई विल बी अवेलेबल फॉर श्योर. जब मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा तब मैं आपको इंटीमेट कर दिया करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे कि फॉर सर्टेन रीजन टुडे आई वोंट बी अवेलेबल. सो ऑटोमेटिकली 9 o'clock डेली व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिफिकेशन आए ना आए, आपको अवेलेबल रहना है. आई विल ऑल्सो बी अवेलेबल. ठीक है, आपको इन्फॉर्म मैं कर दूंगा तब जब मैं एब्सेंट करने का प्लान करूंगा, या फिर मैं किसी काम में फंस गया हूं एंड आई कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर डे, तो मैं आपको अर्ली इन्फॉर्म कर दूंगा. कुछ इन्फॉर्म नहीं किया मीन्स क्लास में अवेलेबल रहेंगे. 5-7 मिनट का डिले, छोटा बहुत डिले तो हो ही जाता कहीं ना कहीं. डन. Okay. चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड नाइट. सी यू टुमारो. Good night, sir. गुड नाइट सर. नाइट.